الحمدللہ اس ملت اسلامیہ کا وہ سنہرا زمانہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ ہند سے لے کر یورپ کے آخری کنارے اسپین تک اسی قرآن و حدیث کے پیروکاروں کی حکومت تھی، اور لگ بھگ 1000 برس تک مسلمان مدبر سائنسداں پوری دنیا پر چھائے رہے۔ کسی ملت کے لیے اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ماضی سے رشتہ توڑ لے اور اپنی تاریخ کی اس روشنی سے محروم ہو جائے جو حال کی راہ منور کرتی اور مستقبل کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ بات افسوسناک ہے کہ ہم مسلمان سائنسدانوں، مفکروں اور ارباب علم کے ان کارناموں سے پوری طرح واقف نہیں جو انہوں نے علم کے میدان میں سر انجام دیے ہیں۔ جب ہم بنی نوع انسان کی اس زرعی تاریخ کے مزید چند اوراق الٹتے ہیں تو عہد قریب میں ہمیں ایک ایسی شخصیت جلوہ سما نظر آتی ہے جو ایک طرف ائمہ اسلام کے ہمدم و ہمراز، ان کی دینی بصیرت اور مذہبی شعور سے آگاہ اور غزالی و رازی کے اثرات سے باخبر، تو دوسری طرف ابن سینا، فارابی، بطلیموس کی تحقیقات سے کھیلتی، ابن ہیثم اور ارشمیدس کی ریاضیات سے مسکرا کر باتیں کرتی، البرٹ آئنسٹائن اور غلیلیو کے نظریات کا تعاقب کرتی، ٹولیسیلی اور نیوٹن کے کلیات کے پرخچے اڑاتی، اور پلسٹلے اور لیوازیے کی کیمیائی انکشافات کی تشریح کرتی نظر آتی۔ گویا البیرونی کے بعد مسلمانوں میں 14ویں صدی ہجری تک البیرونی جیسا سائنسداں پیدا نہیں ہوا۔ یہ اعزاز بر صغیر پاک و ہند کو 1856 عیسوی مطابق 1272 ہجری میں حاصل ہوتا ہے کہ جب دنیا انسانیت کا عظیم مدبر، مفکر اور عظیم سائنسداں بریلی کی سرزمین پر جنم لیتا ہے، جسے دنیا احمد رضا خان بریلوی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شاہ احمد رضا کی بات کریں، تلافی سیریات کریں، وہ علوم کثیرہ میں ماہر، سب پہ علمی نوازشات کریں، انگنت خوبیاں رضا میں رہے، ان کی کیا کیا بیان صفات کریں۔ احمد رضا آدمی تھے یا جن، خود انہی سے سنیے۔ لکھتے ہیں، میرے استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھتا تھا، جب مجھے سبق پڑھا دیتے 1-2 مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیتا، جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا۔ روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے۔ ایک دن مجھ سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو کہ تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے اور مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے اکثر علوم اپنے والد ماجد سے حاصل کیے، جن کا ذکر آپ خود فرماتے ہیں کہ علوم و فنون وہ ہیں جو اپنے والد سے حاصل کیے، علم القرآن، حدیث، اصول حدیث، فقہ حنفی، فقہ جملہ مذاہب، اصول فقہ، جدل مہذب، تفسیر، عقائد و کلام، نحو، صرف، معانی، بیان، بدیع، منطق، مناظرہ، فلسفہ، تکسیر، حیت، حساب، ہندسہ، اور وہ جنہیں میں نے اساتذہ سے بالکل نہیں پڑھا پر نقاد علماء کرام سے مجھے ان کی اجازت حاصل ہے، قرات، تجوید، تصوف، سلوک، اخلاق، اسماء و رجال، سیر، تاریخ، لغت، ادب مع جملہ فنون، اور وہ جنہیں میں نے کسی افادہ بخش استاد سے حاصل نہیں کیا، نہ پڑھ کر، نہ سن کر، اور نہ ہی باہمی گفتگو سے۔ گویا یہ علوم ایسے ہیں جن کی تعلیم صرف آسمانی فیض سے مجھے حاصل ہوئی۔ ارثمتیکی، جبر مقالہ، حساب ستینی، لوغارثم، توقید، مناظرہ و مرایا، علم العقر، زیجات، مثلث کروی، مثلث مسطح، حیت جدیدہ، مربعات، جفر، زائچہ۔ مزید علوم کے بارے میں لکھا کہ جن کی تعلیم بھی کسی استاد سے حاصل نہ کی، نظم عربی، فارسی، ہندی، نثر عربی، فارسی، ہندی، خط نسخ، نستعلیق، تلاوت مع تجوید، علم الفرائض۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، میں نے یہ باتیں فخر اور خواہ کی خود ستائی کے طور پر بیان نہیں کی، بلکہ منعم کریم کی عطا کردہ فرمودہ نعمت کا ذکر کیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ ان میں اور ان کے علاوہ دیگر حاصل کردہ فنون میں بہت بڑا ماہر ہوں۔ معارف کا سمندر موجزن ہے جس کے سینے میں، وہ مقبول در خیر البشر احمد رضا تم ہو۔ اے مجدد احمد رضا، ضیاء طیبہ کی دعوت پر 101ویں عرس میں تشریف لائے شرکا اور ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے یہ کمال درجہ کیسے پایا۔ فرماتے ہیں، فقیر کا درس بحمدہ تعالی
13 बरस 10 महीने 4 दिन की उम्र में खत्म हुआ। इसके बाद चंद साल तक तलबा को पढ़ाया। फलसफा जदीदा से तो कोई ताल्लुक ही न था। उलूम रियाजिया व हिंसा में फकीर की तमाम तहसील, जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम के 4 कायदे के बहुत बचपन में इस गर्ज से सीखे थे कि फराइज में काम आएंगे, और सिर्फ शक्ल अव्वल तहरीर उक़लिदस की, जिस दिन ये शक्ल हजरत अक़दस हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन मौजज़ा मिन मौजज़ात सय्यदुल मुरसलीन व ख़ातमुल मुहक्किकीन सय्यदना अल वालिद क़ुद्दस सिर्रुहुल माजिद से पढ़ी और इसकी तकरीर हुजूर में की। इरशाद फरमाया, तुम अपने उलूम दीनिया की तरफ मुतवज्जा रहो, उन उलूम को खुद हासिल कर लोगे। जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागारी, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहंशाही। फिर वाकई दुनिया ने देखा कि इमाम अहमद रजा ने कई उलूम हासिल किए, बल्कि हर एक इल्म फन में अपनी कोई ना कोई तहरीर यादगार छोड़ी, जबकि बाज को आपने खुद तर्क फरमाया। नाज़रीन कराम, अगर हम इनकी इल्मी खिदमात को इनकी 66 साल जिंदगी के हिसाब से जोड़ें तो हर 5 घंटे में दीन का ये मुजद्दिद एक किताब हमें देता नजर आता है। एक मुतहर्रिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो काम था, इमाम अहले सुन्नत ने तने तन्हा अंजाम देकर अपनी जामे शख्सियत के जिंदा नुकूश छोड़े। इस्लाम के इस मुफक्किर और मुदब्बिर ने साइंस को भी इस्लामी रंग में रंग कर दीनी उलूम में उनका इस्तेमाल फरमा कर इन्हें उलूम दीनिया बिलखुसूस इल्म फिक़ह का खादिम बना दिया। ए मुजद्दिद वक्त, ज़िया तैयबा आपसे सवाल करती है कि क्या आप साइंस के खिलाफ थे? आप साइंस के मुस्तगरक गुमराह फलसफियों का रद्द करते हुए आखिरत का अंजाम याद दिलाते हुए फरमाते हैं, अजीजों, खुदारा गौर करो, कब्र में हशर में तुमसे ये सवाल होगा कि अकाइद क्या थे और अमाल कैसे, या ये कि वो कुल्ली तबई खारिज में मौजूद है या मादूम। तो फिर ए इमाम अहमद रजा, आप हमें बताइए जरा कि साइंस का इल्म कितना सीखना चाहिए। फरमाते हैं, अजीजों, मैं नहीं कहता कि मंतिक इस्लामिया, रियाजी, हिंसा वगैरह अज्जाए जायजा फलसफा ना पढ़ो मगर बकदरे जरूरत। फिर उनमें इन्हमाक हरगिज ना करो, बल्कि असल कार उलूम दीनिया से रखो। राह ये है और अल्लाह जिसे चाहे सीधी राह दिखाए। अब आइए नाज़रीन, अंजुमन ज़िया तैयबा आपको आपके इमाम के इल्मी कहकशाओं की सैर करवाए। मनार कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके एक ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रस्मिया तो एक बड़ी करामत है, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो, जरा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 8 साल की उम्र में पहली किताब बजुबान अरबी शरह हिदायतुन्नहू लिखी, जो इस सदी की सबसे बेहतरीन IQ जाहिर करती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 30 साल की उम्र में मेडिकल एम्ब्रोलॉजी के हवाले से कुरानी आयात फी ज़ुलुमातिन सलास बयान की, और 30 साल ही की उम्र में मेडिकल फिजियोलॉजी से मुताल्लिक खूबसूरत तहकीक अनीक फरमाई, जो जदीद मेडिकल रिसर्च से मुताबिकत रखती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 1896 में बर्रे सगीर पाक व हिंद में सबसे पहले अपनी किताब अस्समसाम में अल्ट्रासाउंड मशीन का फार्मूला नजरिया रोशनी लाइट थ्योरी की बेस पर पेश करके साइंसी दुनिया में सबकत हासिल कर ली। ये बहस आजकल पाइजो इलेक्ट्रिक फेनोमेनन कहलाती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने सबसे पहले 1896 में अपनी किताब अस्समसाम में टोपोलॉजी से मुतालिक थ्योरी पेश की। बाद में 1905 में अपनी किताब अद-दौलतुल मक्किया में गुफ्तगू करके सबकत हासिल कर ली, जबकि ये इल्म पाक व हिंद में 1968 में मुतारिफ हुआ। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान व तबीब जिसने जुजाम लेप्रोसी से मुतालिक 1908 में 32 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी तसनीफ अल-हक़्क़ुल मुश्तला तहरीर फरमाकर इस्लामी नजरिया गैर मुतअद्दी नॉन कम्युनिकेबल पेश करके इस्लाम की बरतरी सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम को साबित किया, जिसकी तायद आज की मेडिकल साइंस ने भी कर दी। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान व तबीब जिसने ताउन प्लेग बीमारी से मुताल्लिक अपनी तसनीफ मकाम-उल हदीद में इस्लामी तहकीक की ऐसी वजाहत फरमाई जिसे मेडिकल साइंस खराज तहसीन पेश करती है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने सूतियात साउंड से मुताल्लिक मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम के बुनियादी उसूल पर फिक्री बहस को तजरिबात से साबित किया, और 1909 में अपनी तसनीफ अल-कश्फ़ुश शाफिया ग्रामोफोन पर
तिलावत कुरान सुनने के जवाब में तहरीर फरमाई और तहकीक की कि आवाजें फिजा में मौजूद हैं। मुफक्किर इस्लाम ने इस रिसाले में इब्तिदान फोटोग्राफी और फोनोग्राफी का फर्क जाहिर किया। नीज साउंड थ्योरी पेश करके कान की साख्त, एनाटॉमी ऑफ द मसल्स टेंसर और एयर आउटर और मिडल को समात के लिए जरूरी बताया, जिसकी तायीद जदीद फिजिकल साइंस ने भी कर दी है। ये बहस आजकल डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन कहलाती है, जबकि इल्म सूतियात पर आपकी एक और तसनीफ अल बयान शाफिया हुक्म फोनोग्राफिया भी है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने वुजू और गुस्ल के पानी पर पूछे गए एक छोटे से सवाल के जवाब में फिजिक्स के मौजू पर फ्लूइड डायनामिक्स से मुताल्लिक तसनीफ अद्दिक्कत व तिबियान 1915 में लिखकर जदीद साइंसी और फिकही अंदाज से तहकीक के अनमोल मोती बिखेरे और पानी की 307 अक़साम बयान की और एक किताब अन्नूर व नौरक तहरीर फरमाई, जिसमें पानी की फिजिकल प्रॉपर्टीज को 43 किस्मों में तकसीम किया। इस तरह पानी की कुल 350 अक़साम का बयान हुआ। ये बयान सिर्फ आदाद में नहीं बल्कि हर एक किस्म का नाम और इसका शरई हुक्म भी बयान फरमाकर और उन पर बहस करके माहिरीन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 1335 हिजरी में मिनरल फिजिक्स के तहत तयम्मुम के मसाइल पर मिट्टी और पत्थर स्टोन्स की तहकीक फरमाकर एक किताब अल मतरुस सईद तसनीफ फरमाई, जो काइंड्स ऑफ मिनरल्स पर तहकीक करने वालों के लिए एक बेहतरीन गाइड है। इमाम ने अपनी इस किताब में जमीन की अजनास मिनरल्स की 311 अक़साम गिनवाने के बाद लिखा, ये 311 चीजों का बयान है। 181 से तयम्मुम जायज, जिनमें 74 मंसूस और 107 ज़ियादात फकीर हैं, और 130 से नाजायज, जिनमें 58 मंसूस और 72 ज़ियादात फकीर। ऐसा जामे बयान इस तहरीर के गैर में ना मिलेगा, बल्कि ज़ियादात दरकिनार इतने मंसूसात का इस्तखराज भी सहल ना हो सकेगा। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने सबसे पहले 1919 में एटमी प्रोग्राम का कुरानी तसव्वुर मुमज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ और हमने इसे पारा पारा कर दिया से इस्तेंबात करके अपनी किताब अल कलिमतुल मुल्हमा में नजरिया एटम बयान किया और जे थॉमस के नजरियात की तायीद की और दलाइल अक़लिया से पहले आयात कुरानिया पेश की। और अमेरिका में जोहरी तवानाई के काम का आगाज करने वाले प्रोफेसर अल्बर्ट आइंस्टाइन और लंदन की मलका एन से सर का खिताब पाने वाले मशहूर साइंसदान न्यूटन के ख्यालात का 5 दलीलों से रद्द किया और अपनी तहकीक में एटमी नजरिए से मुताल्लिक तवील गुफ्तगू की और गलबा इस्लाम की हक्कानियत को साबित करके मुफक्किरों मुदब्बिरों को दावत फिक्र दी। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने जमीन के साकिन होने के हवाले से 1919 में 4 फिक्र अंगेज कुतुब तहरीर फरमाई और 115 दलाइल से ये साबित किया कि जमीन साकिन है और सूरज समेत तमाम सैयारे इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इल्मुल बहर ओशियोनोग्राफी पर भी कलम उठाया और हरकत जमीन की तहकीक में अपने रिसाले फौज मुबीन ही में एक बाब इल्मुल बहर की झेली शाख मद्दो जजर टाइड्स जिसे जवार भाटा भी कहा जाता है पर बहस और तहकीक की। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 17 दिसंबर 1919 को दुनिया में होने वाली होलनाकियों की दुनिया भर के अखबारात में पेशन गोई करने वाले फ्रांसिस्को अमेरिका के माहिर सवाकिब मेट्रोलॉजिस्ट प्रोफेसर अल्बर्ट एफ पोटा का जबरदस्त रद्द बलीग अपनी किताब अल कलिमतुल मुल्हमा में फरमाकर माहिर उलूम फल्कियात एस्ट्रोलॉजिस्ट की फहरिस्त में भी अपना नाम लिखवा दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने ज़लज़ले अर्थक्वेक पर आज से 115 साल कबल 1327 हिजरी में तहकीक फरमाई। एक नजरिया ये था कि जमीन एक गाय की सींग पर है और वो मछली पर खड़ी है। जब इसका सींग थक जाता तो वो दूसरे पर बदल लेती, जिसके सबब ज़लज़ला पैदा होता। बरेली के मुदब्बिर आला हजरत ने इस बात को न सिर्फ बेअसल करार दिया बल्कि ज़लज़ले पर मजीद तहकीक और दलाइल दिए कि इसका असली बाइस आदमियों के गुनाह है और पैदा यूं होता है, एक पहाड़ जमीन को मुहीत है, ओशियनिक एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की तय है और उसके रेशे क्रस्ट की रूट्स जमीन के अंदर सब जगह फैले हुए हैं जैसे बड़े दरख्त की जड़ें। जिस जमीन पर माअज़ल्लाह ज़लज़ले का हुक्म होता है वो पहाड़ उस जगह के रेशे रूट्स को जंबिश देता है, जमीन हिलने लगती है। मजीद इमाम अहमद रजा ने अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड से मुतालिक भी गुफ्तगू फरमाई। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने अपने फतावा में औज़ान व पैमाइश वेट्स एंड मेजरमेंट्स के इस्लामी निजाम सिस्टम की रोशनी में बेशुमार कैलकुलेशन से मसाइल के हल तलाश किए और जबरदस्त रियाजियाती तज्जियों की बुनियाद पर बरेली के बोरिया नशीन की तहकीकात और मबाहिस
बड़ी महयूर उकूल हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने रियाजी, मैथमेटिक्स, अलजबरा और इल्म हिंसा, ज्योमेट्री, इल्म मुसल्लस, अरिस्मतीकी, लोगरिस्म और इल्म हियत पर तकरीबन 40 कुतुब तहरीर फरमाई, जो तख्लीकी काविशों से फिक्री जाविये बयान करके माहिरीन को दावत तहकीक दे रही हैं। इल्म लोगरिस्म और इल्म मुसल्लस कुरवी, स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के उसूल और कवायद और दलाइल और बराहीन से सिमत किबला से मुतालिक अपने वक्त में पेश आने वाले मसाइल पर एक किताब हिदायतुल मुतआल और कश्फुल इल्ला तहरीर फरमाई और तहकीक बरजंदी की तायद की और जहत किबला पर लिखा कि सिवा गिनती के 2-4 नादिर मकामों के जो शायद आबाद भी ना हो बल्कि गालिबन समंदर में पड़े, जिनका किबला नुक्ता एतदाल हो। बरेली के एक छोटे से कस्बे में बैठा ये मुफक्किर और मुदब्बिर दुनिया के 2-4 मकामात की तरफ इशारा कर रहा है जो मगरिबैन या मशरिकैन जहत किबला से खारिज हैं। इन मकामात में से चंद को आज मुहक्किकीन ने जाना कि वो रूस का एक दलदली इलाका, ग्रीनलैंड की आखिरी जुनूबी सरहद बहरे जुल्मात की गहराई, ऑस्ट्रेलिया के जुनूबी जजीरे हुबार्ट का वो समंदरी इलाका जिसे बर्फ का समंदर कहा जाता है, और चौथा अर्जेंटीना का वो समंदरी इलाका जिसे ड्रैग वाटर वे का नाम दिया गया है। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इल्म तौकीद पर गिरा कदर काम छोड़ा। अपने वक्त के इस मुजद्दिद को इस फन में इस कदर कमाल महारत हासिल थी कि आप अपने ईजाद करदा कवायद के जरिए ये मालूम कर लेते थे कि किस वक्त आफताब तुलू करेगा और किस वक्त गुरूब। आपकी फन तौकीद में 19 के करीब शाहकार किताबें मिलती हैं। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने उस दौर के मुताबिक एक अजीम इस्लामी माशी मंसूबा और इक्तिसादियात पर किफलुल फकीह फाहम और तदबीर फलाह नजात तहरीर फरमाई और मजीद रसाइल और निकात इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स की तहरीर किए जो 100 साल बाद आज भी और आइंदा कई सदियों तक कारआमद साबित हो सकेंगे। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने आज से कई साल कबल एक जामे और पुरअसर तालीमी मंसूबा पेश किया। आपने एजुकेशन एंड रिसर्च सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसमें तालीमी सिस्टम पर आपका 10 निकाती एजेंडा आबे ज़र से लिखने के काबिल है। एक काश के हम तकमील भी कर दें। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने इन्ताफ नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की थ्योरी की वजाहत प्रैक्टिकल के जरिए उस वक्त फरमाई जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर सर जियाउद्दीन अहमद ने इमाम की चौखट को दस्तक देकर दरियाफ्त किया कि हुजूर इसका क्या सबब है कि आफताब हकीकतन तुलू नहीं हुआ मगर ऐसा मालूम होता है कि तुलू हो गया। मोहल्ला सौदागरान की छोटी सी गली में रिहाइश पजीर दीन के इस इमाम ने डॉक्टर सर जियाउद्दीन को इन्ताफ नूर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ताल्लुक से प्रैक्टिकल व तजरिबा के जरिए ऐसी रहनुमाई फरमाई कि डॉक्टर साहब ने इस बात का एतराफ किया और कहा कि मेरे सवाल का जवाब बहुत मुश्किल और नाकाबिल हल था और इस सिलसिले में जर्मनी जाने वाला था, लेकिन आपने फिल बदी हल कर दिया। सही मानों में ये हस्ती नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है। हवा थी गोतुंद तेज लेकिन चराग अपना जला रहा था, ओ मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए थे अंदाज खुशरवाना। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसने 14वीं सदी का सबसे बड़ा फिकही इंसाइक्लोपीडिया अल अताया अन नबविया फिल फतावा अर्रदविया मारूफ बे फतावा रजविया जहाजी साइज की 12 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुहीत आलम इस्लाम के लिए लिख छोड़ा। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसमें इल्म अरूज में बेश बहा खजाना हमदे बारी ताला, मदह खैरुल अनाम, मनाकिब, तारीख़ी क़ताअत के अलावा दीगर उलूम फ़नून पर भी अशार लिखकर शायरी को फरोग दिया। अहमद रजा बरेलवी पहला मुस्लिम साइंसदान जिसकी तहकीकी खिदमात पर कसरत से एमफिल और पीएचडी मकालात लिखे गए और उन पर मुहक्किकीन ने आला डिग्रियां हासिल की। इस्लामिया कॉलेज लाहौर के प्रोफेसर मौलवी हाकिम अली BA ने इमाम अहले सुन्नत से जमीन की गर्दिश से मुतालिक सवाल में आपको कुछ इस तरह मुखातिब किया कि गरीब नवाज करम फरमा कर मेरे साथ मुत्तफिक हो जाओ तो फिर इंशाअल्लाह ताला साइंस को और साइंसदानों को मुसलमान किया हुआ पाओ। जवाब में आपने एक तहकीकी किताब नुज़ूल आयत फुरकान तहरीर फरमाई और इख्तिताम पर प्रोफेसर साहब से मुखातिब होकर बड़ी मोहब्बत से दिल पजीर और ईमान अफरोज तालीम तलकीन फरमाई। फरमाते हैं मुहिब्बे फकीर साइंस यूं मुसलमान ना होगी
کہ اسلامی مسائل کو آیات و نصوص میں تعویلات دور اسکار کر کے سائنس کے مطابق کر لیا جائے۔ یوں تو معاذ اللہ اسلام نے سائنس قبول کی، نہ کہ سائنس نے اسلام۔ وہ مسلمان ہوگی تو یوں کہ جتنے اسلامی مسائل سے اسے خلاف ہے سب میں مسئلہ اسلامی کو روشن کیا جائے، دلائل سائنس کو مردود و پامال کر دیا جائے، جا بجا سائنس ہی کے اقوال سے اسلامی مسئلے کا اثبات ہو، یوں قابو میں آئے گی۔ اور یہ آپ جیسے فہیم سائنسدانوں کو بِإِذْنِهِ تعالی دشوار نہیں۔ الغرض صرف یہ ایک احمد رضا ہی نہیں، مسلمانوں کی علمی خدمات کی ایک طویل داستان ہے جسے بیان کیا جائے تو کئی ضخیم کتابیں تیار ہو جائیں اور یہ ثابت کرنا آسان ہو جائے کہ آج سائنس کے جن نظریات کو اہل مغرب کی تحقیقات سمجھا جاتا ہے دراصل عہد قدیم کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو تمام ممالک اسلامیہ میں پھیلے ہوئے ہیں۔ خود اہل یورپ نے بھی اس حقیقت کا بارہا اعتراف بھی کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم مسلمان اپنے ورثے کو بلا بیٹھے اور اپنی ہی چیزوں کو دوسروں سے مستعار سمجھنے لگے۔ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کس دکھ کے ساتھ اس طرف اشارہ کیا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ناظرین کرام، اس مکمل ڈاکیومنٹری گفتگو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کا اپنا لکھا ہوا یہ شعر آپ کی ذات و صفات کا احاطہ کرتا نظر آتا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔